Hello students, you are welcome in my YouTube channel Daksh Tutorial. As today I will tell you chapter number first of class 10th named as the real numbers. So first of all I introduce you with this chapter some important facts. One of them is the name of the chapter is रियल नंबर. जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर्स है. तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में कुछ पता करते हैं, कुछ ज्ञान करते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले सबसे छोटा हमारा नेचुरल नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर. ये हम प्री क्लास LKG से भी सीखते आए हैं. नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं. सिंपली वी कैन से दैट ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स. So it is start from 1 and going to infinitely 1 2 3 4 5. So our smallest natural number is 1 and greatest natural number is not possible to write. Next one, after that our whole number, you know also whole numbers also read in pre classes. So whole numbers are that if we include 0 into the natural number then we get the whole number. So our smallest whole numbers is 0 and greatest whole number is not possible to write. And the next step is integers. Integers also we have read. So minus infinity to going to plus infinity. So there is no smallest integer and neither nor greatest integer. So it is the but our greatest negative integer is -1 and smallest positive integer is 1. 0 is neither negative nor positive, it is only an integer. After that I will tell you about the rational number. You have read in also 3 classes. rational number से वो नंबर होता है जिसमें a number which can be written in the form of p upon q. वो नंबर जिसे हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q दोनों क्या होते हैं, where p and q are integers but q is not equal to 0 is called rational number. उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 2 upon 3, 3 upon 8, -5, 0, 4 आप देख रहे हैं. -5, 0, 4 ये आप पहले से भी जानते हैं. सभी नंबर्स हमने जो पढ़े हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. -5 भी होता है क्योंकि -5 को -5 ले सकते हैं, आप सभी जानते हैं. आगे है इसके बाद इरेशनल नंबर भी सेम रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है. नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q इज नोन एज द इरेशनल नंबर. जिन्हें हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, where p and q are integer but q is not equal to 0 is called irrational number. For example √3, √5 upon 2, 0.0, 0.00, 0.001 etc. ये सभी ऑल रूट जो शर्ट्स वाले नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं और ये हमारा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल रिप्रेजेंटिंग करने वाले भी नंबर हमारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं. Yes students, your next concept is the real numbers. As the name of the chapter is real numbers, so this whole chapter is completely depend on the concept of the real number. So real numbers means rational plus irrational. If we combine both rational and irrational numbers we get the group of real numbers. अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें तो जो कलेक्शन मिलेगा that is known as the real numbers. Real numbers are represented by capital R simply. So after that our next concept, an important concept for this chapter is algorithm. Algorithm means होती है किसी कार्य को करने की प्रक्रिया. एल्गोरिथम में कोई भी जो काम करते हैं उसका जो पूरा प्रक्रिया है वही हमारी एल्गोरिथम कहलाती है. Simply as a definition is also saying that an algorithm is a series of well-defined steps. An algorithm is a series of well-defined steps. यानी किसी भी काम को करने के अच्छे से सुपरिभाषित स्टेप्स जो सरल प्रक्रिया है वही उसकी एल्गोरिथम होती है. is a series of well-defined steps which gives a procedure for a solving a type of the problem. जो एक प्रोसीजर देती है, एक तरीका देती है जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं. आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है लेमा.
लेमा जस्ट लाइक एक्सोम, एक्सोम की तरह से होता है। प्रूवन स्टेटमेंट, एक्सोम भी प्रूवन स्टेटमेंट होता है और हमारा ये भी लेमा भी प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, सेम वैसे ही है जैसे कि एक्सोम का प्रयोग हम किसी दूसरे कंसेप्ट को, थ्योरम को प्रूव करने में करते हैं, ठीक वैसे लेमा का भी हम प्रूव उसी तरीके से करते हैं, यूज करते हैं जैसे कि हम एक्सोम का करते आए हैं। सो लेमा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज किया जाता है। आफ्टर दैट our next concept, theorem number 1.1, simply we can say that it is the explain division algorithm, Euclid's division lemma। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करती है। सो गिवन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, मान लीजिए कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, कोई भी इंटीजर्स a और b है तो हमारे q एंड r दो ऐसे यूनिक इंटीजर्स होते हैं विच सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r। सिंपली इट इज द a इक्वल टू bq प्लस r, r लेस देन इक्वल टू सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। हमारा जो r है वो 0 से बड़ा अथवा 0 के इक्वल और b से छोटा होता है। यहाँ पर a इक्वल टू bq प्लस r को ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है, ये यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाती है, जो ये कहती है अगर कोई दो इंटीजर a और b दिए हुए हैं तो उनके लिए कोई दो यूनिक इंटीजर q और r इस प्रकार से होते हैं कि वो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं a इक्वल टू bq प्लस r। ये सिंपली हम आपको बता दें, ये जो पिछली क्लासेस में आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम वही कंडीशन है। A is the dividend, B is divisor, Q is quotient, R is remainder। Okay, so it is the and R हमारा हम जानते हैं रिमाइंडर हमेशा 0 अथवा 0 से बड़ा आता है, लेकिन जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा होता है। सिंपली वही आपके डिवीजन एल्गोरिथम है। इट इज एनफ फॉर टुडे एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, द ट्यूटोरियल ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट।